بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ نام تو اس کا امیر محمد تھا، بلاتے سب میرن میاں تھے۔ وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ ان دنوں میرن کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ یوں تو خوش تھا جیسے دو جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ بیوی خوبصورت ملی، اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہوتی تو اس کے چہرے کی دمک سے کمرے میں روشنی ہو جاتی۔ رنگت چاندنی سی اجلی اور اس میں رنگ گلاب کی آمیزش تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا نصیب میں حسن کی ایسی دولت لکھ دی گئی ہے۔ وہ اس دولت کا بلا شرکت غیر مالک تھا کہ صوبیہ اس کی منکوہا تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ چمکتی دمکتی صورت کی ایک جھلک دیکھ کر ہی بہت سے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ بیوی اگر خوبصورت اور وفادار بھی ہو تو دوسروں کی نظر میں اس قدر قابل ستائش ہوتی ہے کہ آخر حسن مغرور ہو جاتا ہے۔ صوبیہ مغرور تو نہ ہوئی، لیکن محلے بھر کی عورتوں کے منہ سے اپنے حسن کے قصیدے سن کر شوہر کے سامنے اترائی سے پھرنے لگی۔ یہ اس کا الہڑ پن اور معصومیت تھی کہ ہر کسی کے اپنے بارے میں تعریفی کلمات سن کر شوہر کے گوش گزار کر دیا کرتی تھی۔ تب اس کا شوہر کچھ بھنجکار سا رہنے لگا تھا۔ اس کو اپنی بلا شرکت غیر دولت کے لٹ جانے کا دھڑکا سا لگ گیا۔ سوچتا یہ کہیں میری بھول تو نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اس دھڑکنے نے اس کو وہمی بنا دیا۔ لیکن کہاں تک گھر میں بیٹھتا اور اس دولت کی حفاظت کرتا۔ صبح نوکری پر جاتا تو رات گئے گھر لوٹ پاتا تھا۔ ایک روز جبکہ یہ چھٹی کا دن تھا، دوپہر کا کھانا کھا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ بیوی کپڑے دھونے کے بعد انہیں چھت پر ڈالنے گئی تھی۔ کافی دیر اس کے تصور میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ وہ نہ لوٹی تو بے چینی سے کروٹیں لیتے لیتے اٹھ بیٹھا۔ آخر چھت پر جا پہنچا۔ میرا نے دیکھا کہ بیوی رسی پر آخری کپڑا ڈال رہی ہے اور سامنے کے گھر سے ایک نوجوان اپنے کمرے کی کھڑکی سے یکٹک اسے دیکھے جاتا ہے۔ وہ صوبیہ کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ اسے میرن کی آمد کا احساس بھی نہ ہوا۔ صوبیہ کے بال کھلے تھے، وہ تھوڑی دیر پہلے نہائی تھی اور بڑی حسین لگ رہی تھی۔ بیوی پر ایک نظر ڈالتے ہی اس پر بے اختیار پیار آ گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بھپک اٹھا، کیونکہ اس نوجوان ہمسائے نے اس کو دیکھنے کے فوراً بعد ہی جھٹ سے کھڑکی بند کر دی۔ بیوی نے میرن کو پلٹ کر دیکھا تو خجل سی ہو گئی۔ حالانکہ اس سادے سین میں اس کا کردار ایک غافل کا تھا، پھر بھی اس کو لگا جیسے وہ مجرم ہو۔ بس اتنی سی بات تھی جسے میرن میاں کا سکون درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ وہ تلملایا ہوا نیچے آیا، بیوی سے پوچھا کیا بات تھی؟ تم اتنی دیر سے چھت پر تھی اور نیچے نہیں آ رہی تھی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں الگنی پر کپڑے ڈال رہی تھی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اتنی دیر تک تم رسی پر کپڑے ڈالتی رہی، مجھے بے وقوف بنا رہی ہو۔ اتنی دیر میں آدمی دنیا کا چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ اس مبالغے پر وہ ہنس دی، مگر شوہر کا غصہ فرونا ہوا۔ صوبیہ کو بری طرح جھڑک دیا، تمام رات اس کے ساتھ کلام نہ کیا۔ بظاہر اس نے ایسی ویسی کوئی بات نہ دیکھی تھی، مگر دل میں شک و شبہ کی بھٹی سلگ اٹھی۔ دونوں میں میرن کی حالت عجیب ہوتی گئی۔ دفتر میں سارا دن اس کی طرف دھیان بھٹکتا، سوچتا کہ میری غیر موجودگی میں وہ ضرور چھت پر گئی ہوگی، اس نوجوان میں دلچسپی لیتی ہوگی، دونوں نے کچھ اشارے کیے ہوں گے۔ کیا خبر یہ دونوں میرے گھر میں ملتے ہوں یا میری بیوی اس نوجوان کے گھر چلی جاتی ہو جو اس کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے تکتا رہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا سر گھومنے لگتا، کام نہ ہوتا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر وہ سیدھا گھر کی طرف بھاگتا۔ اس طرح شوہر کے اچانک آمد سے صوبیہ حیران رہ جاتی، حالانکہ ہمیشہ وہ گھر پر موجود ملتی، مگر وہ سوچتا کہ شوق کپڑے پہنے بیٹھی ہے، لگتا ہے ابھی بھی کہیں سے آئی ہے، یقیناً اس سامنے والے گھر میں اس لڑکی سے مل کر آئی ہوگی۔ اپنے گیٹ سے نکل کر چھپاک سے سامنے والے گیٹ میں جہاں گھسنے میں دیری کتنی لگتی ہے۔ تب وہ اس کو کڑیدتا، ڈھکے چھپے الفاظ میں پوچھتا کہ تم کہاں گئی تھی، کیا جلد لوٹ آئی ہو؟ وہ یہی جواب دیتی کہ میں تو کہیں گئی نہیں تھی۔ کسی کو وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دنوں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ تو اب جیتا تھا اور نہ مرتا تھا۔ اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ گھر چھوڑ دیتا اور کوئی دوسرا مکان کرائے پر لے لیتا۔ اگرچہ مکان چھوٹا سا تھا اور وراثت میں ملا تھا، یہ بھی ممکن نہ تھا کہ اس نوجوان ہمسائے کو ہی اس کے گھر چھوڑنے پر مجبور کرتا۔ وہ لوگ برسوں سے وہاں رہ رہے تھے، یہ ان کا ذاتی وراثتی گھر تھا۔ کلیم کے بڑے بھائی کا تبادلہ ہونے کے باعث سارا کنبہ سیالکوٹ چلا گیا تھا اور یہ نوجوان تعلیم کی خاطر یہاں رکا ہوا تھا۔ چھپ چھپ کر جاسوسی کرنے کی کوشش میں ہر طریقے سے چاہا کوئی ثبوت ملے اور شک و شبہ کی ٹھنڈی آگ میں جھلسنے سے بچ جائے۔
खुद को यहाँ तक ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया कि अगर बीवी को इस नौजवान के सामने मुस्कुराते भी देख लेता तो फौरन तलाक दे देता, मगर मालूम था कि इससे अच्छी बीवी फिर ना मिलेगी। इस अजियतनाक ज़हनी कैफियत के हाथों जीते जी मौत की कशमकश में मुब्तला था। हर सूरत निजात पाना चाहता था। कभी कभी अपने दफ्तर में बैठा होता यूं सोचने लगता जैसे इसकी बीवी ने कलीम को घर बुला लिया होगा और अब वो इसके साथ प्यार की बातें कर रही होगी, इसके गले में बाहें हमाइल कर रही होगी। तभी दफ्तर से उठकर घर को चल निकलता, रास्ता भर दुआएं करता जाता कि अल्लाह आज तो मेरी मुशक्कत को ठिकाने लगा, मेरी बीवी को आज रंगे हाथों पकड़वा दे। ऐन इस मौके पर इस नौजवान के साथ देखूं तो शक्ल शुबा की दोजख ठंडी हो, फिर तो इनको ऐसा मजा चिखाऊं कि उम्र भर याद रखेंगे। इनको मौत की घाट ही उतार दूंगा तो भी अफसोस ना होगा। फांसी पाकर कम से कम इस अजाब से तो निजात मिल जाएगी। हर बार मगर इस मर्दे नादान को मायूसी होती। बीवी इस कदर इसकी मुंतजिर हंसकर इसका इस्तकबाल करती। कभी खाना पका रही होती तो कभी कपड़े इस्त्री कर रही होती, कभी और काम काज। वो सारे घर में झांकता, तलाशी लेता, अलमारियों में, रेलिंग के नीचे, छत पर, सीढ़ियों में, कोना कोना छान मारता जैसे नौजवान आदमी ना हो, मक्खी मच्छर हो या चूहा, किसके आते ही बिल में घुस गया हो। अब अक्सर मेरन मियाँ से बीवी की लड़ाई रहने लगी क्योंकि वो बात बात पर इससे उलझ पड़ता था। इसका कहीं आना जाना बंद कर रखा था। वो बेचारी किसी से ना मिल सकती थी, कोई घर में ना आ सकता था। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि घर को बाहर से ताला लगाकर जाने लगा। सीढ़ियों के दरवाजे को भी ताला लगा दिया करता था ताकि सोबिया इसकी गैर मौजूदगी में छत पर भी ना जा सके। मसला यह था कि इसके कमरे की खिड़कियां कलीम के घर की खिड़कियों के सामने खुलती थी। जब मेरन ने खिड़कियों को कीलें ठोककर बंद करना चाहा तो सोबिया ने सख्त एहतजाज किया कि इस तरह कमरों में हवा और रोशनी बंद हो जाएगी। इसका दम घुटने लगा। इसने मशवरा दिया कि खिड़कियां ठोक कर बंद करने की बजाय इसे चाहिए कि वो किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर से अपना इलाज करवाए, क्योंकि इसको वहम की बीमारी हो गई है। इस वजह से वो गुस्से से पागल हो गया है। बीवी पर इल्जाम लगाया कि वो इस नौजवान से इन खिड़कियों के जरिए बातचीत करती होगी, लिहाजा इनको बंद करने पर वावेला कर रही है। सोबिया मियाँ जी की इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। इसने जवाब दिया, बेशक यूं ही सही। इसका एक जुमले का सुनना था कि मियाँ जी के तो सारे शकूक यकीन बदल गए और इसने सोबिया से कहा, ठीक है, अगर तुम ये इकरार करती हो तो मैं तुमको तलाक देता हूँ। तुम जाकर इस सामने वाले हमसाए नौजवान कलीम से शादी कर लो। सोबिया कोई तवक्को ना थी कि वो इस हद तक गिर जाएगा। वो रोने लगी कि आखिरकार मेरा कसूर क्या है? क्या कभी तुमने मुझे अपनी आंखों से कोई गलत हरकत करते देखा है? कोई तो सबूत हो, किसी मोहल्लेदार ने कुछ कहा हो, कोई तहरीर मिली हो। जब कोई सबूत नहीं है तो महज शक की बिना पर मुजरिम ठहराना कहाँ का इंसाफ है? वो अपनी जगह सच्ची थी। मेरन को इससे मोहब्बत थी भी बहुत, लेकिन अब इसके सिवा चारा ना था कि मियाँ इसको अपनी जिंदगी से अलहदा करके अपने आप को इस अजाब से बचा ले जिसमें वो एक कोड़ के मर्ज की तरह मुब्तला होगा। कलीम से कुछ कहना तो मोहल्ले में खुद अपनी बदनामी को आप आवाज देना था। इसके पास एक ही हल था, जोजा गरीब पर इसका जोर चल सकता था। इसने तलाक की ठान ली, हालांकि जानता था कि बेचारी सोबिया का इस दुनिया में इसके सिवा कोई नहीं है। सोबिया ने बताया कि वो उम्मीद से है। वो समझ रही थी कि इस खुशखबरी से वो इसको सताने से बाज रहेगा और तलाक का ख्याल भी दिल से निकाल देगा। चुनाचे ये नई इतला इसके पैरों की जंजीर बन गई कि अब वो इसको बच्चे की वलादत से पहले तलाक नहीं दे सकता था। इन्हीं दिनों कलीम इम्तिहान पास करके सियालकोट चला गया और मेरन की बेचैनी में कमी आ गई। लेकिन बदनसीबी जब पीछे लग जाए तो ताक़ुब इस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक कि बर्बाद न कर दे। क्या वाकई मेरी बीवी बेऐब है? अब सोते जागते उठते बैठते यही गम दिल को खाने लगा कि क्या खबर ये औलाद किसकी हो। मगर मुझे अब उम्र भर अपना लख्त जिगर समझ कर परवान चढ़ाना पड़ेगा। कुछ ज़हनी मर्ज ऐसे होते हैं जो बीवियों पर शक करते हैं तो अपनी औलाद ही इनकी सज़ा की जद में आ जाती है। ऐसे किस्से तो हमारे माशरे में आम हैं। आह, ये कितनी बड़ी ज्यादती होगी। मेरन सोचता इससे बेहतर था कि मैं बेऔलाद रहता। एक बार तो शको शुबह के इजहार पर बीवी ने कुरान पाक भी उठा लिया, मगर मेरन का दिल साफ ना हुआ। चंद दिन ठीक रहता, फिर ख्यालों के भूत प्रेत चिमट जाते। अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। शफकत से दिल फटने लगा। बेख्तियार होकर इसको कलेजे से लगा लिया। बहरहाल बच्ची के जन्म लेने से कुशीदगी खत्म हो गई। दिल में जो कदूरतें बढ़ गई थी कम हो गई। इसकी गूंगाम मेरन का दिल खींचने लगी। सोबिया भी बच्ची में ऐसी मशगूल होगी कि पिछली सारी तलखियां भुलाकर बेटी की परवरिश में खो गई। इसने इसका नाम नाज बीबी रखा। अब भी मगर कभी कभी इसका दिल घबराता है, बैठे बैठे होल उठते।
एक खली सी जी को परेशान करने लगती, पुराने शकूक सर उठाते और वह जबरदस्ती दिल में इनका गला घोंट देता। सोचता अगर वाकई ये मेरी बेटी है तो इन शकूक की वजह से मेरी अपनी औलाद तकलीफ और परेशानी में मुब्तला रहेगी। बेहतर यह है कि इन सोचों की तरफ ध्यान ना दिया जाए। पालने से निकलकर नाजो घुटने पर चलने लगी। फिर पाँव पाँव यूं कि इसकी हर अदा पर मियाँ बीवी जी जान निछावर करते रहे। घर में इसके लिए खिलौनों के ढेर लगा दिए गए। सोती जागती गुड़िया, नाचने वाला बंदर और ड्रम बजाने वाले भालू नाजो मीरन की आंखों का तारा और दिल का सहारा बन गई। अब तो लगता था वाकई पिछला वहम भुला चुका है। इकलौती बच्ची थी। इन्हीं दिनों मीरन की सोई हुई बदबख्ती एक बार फिर जाग उठी। सामने वाले घर जिसमें नौजवान हमसाया रहता था दोबारा आबाद हो गया। इसे मुलाजमत भी इस शहर में मिल गई और वह वापस इस मोहल्ले में इस घर में लौट कर आ गया। गोया अब इसको कहीं जाना ही नहीं था। शुमाई किस्मत पर वो मीरन की महकमे में अफसर लगा। इसकी मौजूदगी फिर से सुहाने रूह हो गई। इस पर सितम ये कि जब भी नाजो बेटी खेलने को गली में निकलती, कलीम बाहर होता तो वह खुद दौड़ कर इसकी तरफ चली जाती। बच्चे किसको प्यारे नहीं लगते। वो अपनी तरफ हमकती मासूम बच्ची को गोद में उठा लेता, चॉकलेट कभी बिस्किट दे देता और मीरन से कहता, मियाँ जी आपकी बेटी बहुत प्यारी है। मीरन के चेहरे पर मसनूई खुशी के आसार उभरते मगर दिल में धमाके से होने लगते। सोचता शायद ये अपनी माजी के इस कारनामे को कलेजे से लगाए खुश हो रहा है और मुझको अहमक जानकर हंस रहा है। मेरी बेवकूफ़ी पर दिल तो कह के लगा रहा होता था कि देखो कैसा उल्लू बनाया, ये मेरी औलाद को पाल पोस रहा है और उसको खबर भी नहीं। मीरन का मर्ज वहम फिर से आउद आ गया और इस सूरत हाल को बर्दाश्त न कर पाया। एक रोज़ इस नौकर ने बताया कि कलीम साहब आपकी बच्ची से बेहद प्यार करते हैं। ये गली में खेल रही होती है तो कहते हैं इसे मेरे पास उठाकर लाओ, इसकी तोतली जुबान से प्यारी प्यारी बातें सुनो तो बोरियत खत्म हो जाती है। मीरन बच्ची देर तक इसके साथ खेलती रहती। फिर वो इसको बिस्किट का डब्बा कभी कोई और शय देकर नौकर के हाथ मीरन के घर भिजवा देता। मीरन ये बिस्किट के डब्बे टॉफियां उठाकर कूड़े के डब्बे में फेंक देता और बच्ची की गालों पर चांटे मारता ताकि वो फिर वहां ना जाए। ये देखकर बीवी बुलक उठती, वो चीखने लगती कि तो जुनूनी इस पर बरस पड़ता। नाहक इनकी अच्छी भली जिंदगी फिर से जीरन हो जाती। अपना अफसर होने के नाते वो कलीम को कुछ न कह सकता था। समझ में नहीं आता था कि इसको गोली मार दे या खुद सारे कुंबे के साथ जहर खा ले। एक दिन बीवी बीमार हो गई तो अपनी खाला के हमरा डॉक्टर से दवा लेने चली गई। इस रोज मीरन ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। बच्ची पलंग पर सो रही थी। जहन में अजीब सा ख्याल गूंजा। अक्सर अखबारात में ऐसी खबरें पड़ी थी कि किसी नौजवान ने बेटी की पैदाइश पर नाराज होकर इस मासूम को फेंक दिया या फिर इसको दर्द पहुंचाने की सही की कि बेटी क्यों पैदा होगी। मीरन को इसके साथ ही अजीब सा ख्याल आ गया कि जिस शख्स ने बरसों से मेरे दिल और दिमाग और की दुनिया में तबाही मचा रखी है, मैं इस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाकर अपने रकीब यानी कलीम से इंतकाम क्यों ना लूं। सच है इंतकाम की आग बुरी होती है। इसने घड़ी देखी, हमसाये के दफ्तर से लौटने का वक्त हो रहा था। वो अकेला रहता था। इसका बूढ़ा मुलाजिम सौदा सलफ लेने इस वक्त बाजार गया हुआ था। वो नजदीक गया, लिहाजा ताला लगाने के बजाय गेट के बाहर से कुंडी लगाकर गया था। यह अच्छा मौका था। पास पड़ोस में सभी जानते थे कि कलीम मीरन की बच्ची से प्यार करता है और कभी कभी वो इसके घर में भी चली जाती है। मीरन की बीवी घर में ना थी। सोती हुई बच्ची को उठाकर मीरन तेजी से कलीम के घर गया और इसको बिस्तर पर लिटाकर ब्लेड से मजरूब कर दिया। बच्ची सदमे से बेहोश हो गई। ऐसा करते वक्त वहम इसका इस पर गलबा था। इसने इंतकाम में अंधा होकर यह भी ना सोचा कि ये तो मेरी अपनी बच्ची है। वो तो इस हमसाये के गुनाह का बोझ तस्वुर करके जख्मी कर चुका था। वो तुरंत वापस घर आया, ये गुमान करके कि मुझे तो किसी ने भी नहीं देखा है। चंद मिनट बाद ही दफ्तर से कलीम आ गया। इसके घर में दाखिल होते ही मीरन एक हमसाये लड़के के हमरा बच्ची को ढूंढने के लिए निकला। इस बहाने कलीम के घर में दोबारा चला गया। इस वक्त बूढ़ा मुलाजिम भी सौदा लेकर आ गया। इन तीनों के सामने वो चिल्लाने लगा, फिर गली में निकलकर शोर मचा दिया। लोग जमा होकर पूछने लगे कि क्या हुआ है, क्यों शोर कर रहे हो, कुछ बताओ तो सही। इसने कलीम के घर की तरफ इशारा किया। वो घर में दाखिल हो गए, जहां बिस्तर पर बच्ची मजरूब हालत में बेहोश थी और इसकी दोनों कलाइयां भी जख्मी थी। कोई भी सूरत हाल को समझ ना पाया कि लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आ गई, तफ्तीश हुई, बच्ची को अस्पताल ले गए। कानून अंधा होता है लेकिन इसके हाथ मजबूत होते हैं। जुर्म करने वाला समझता है कि वो सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना लेगा, मगर सारी दुनिया को तो क्या, वो सिर्फ कानून को भी जल नहीं दे सकता, बशर्त के कानून के मुहाफिज बाज़मीर हों और बिकने वाले ना हों।
आखिरकार मुजरिम पकड़ा ही जाता है। इस बिना पर बच्ची के कत्ल की कोशिश के इल्जाम में मेरन भी पकड़ा गया। शहादतों से कलीम बेगुनाह साबित हो गया। मेरन को बिलाखिर अपने जुर्म का इकरार करना पड़ा। सजा हुई, फिर कानूनी सजा तो खत्म हो गई, मगर जमीर की सजा अभी तक खत्म नहीं हुई। उम्र भर भी खत्म ना होगी। जमीर तमाम उम्र मेरन को सजा देता रहेगा। बीवी छोड़कर चली गई, वो इसकी सूरत देखने की भी रवादार ना थी, और बेटी भी जिसका वो सामना नहीं कर सकता था। इससे नफरत करती है। इस नफरत करना भी चाहिए, क्योंकि वो इस मासूम का तो मुजरिम है जिसका इस सारे वाक़े में कोई कसूर ना था। खुदा ने इसकी जिंदगी रखनी थी, वरना इस शख्स ने तो इंतकाम की आग में कोई कसर न छोड़ी थी। सच है कि ज़हनी मरीज बेज़ाहिर देखने में ठीक ठाक मालूम होते हैं, लेकिन वो दरअसल ठीक नहीं होते। जब ऐसे लोग शदीद वहम में मुब्तला हों या अजीबो गरीब हरकतें करें तो इनका इलाज कराना ज़रूरी होता है।